ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ कि इतने कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और जैसे डॉक्टर लोलिया ने बताया कि उनके 25 चोरी हुए थे, तो एक बार किसी का लैपटॉप और फ़ोन भी चोरी हुआ है पहले। एटलीस्ट 2 या 3 पीपल वी नीड फॉर आवर सिक्योरिटी। ऊपर से यहाँ बहुत सारे अननोन लोग आते हैं, जैसे ऑलरेडी सर ने बताया कि वो बाहर से सूप वगैरह पीने के बहाने से अंदर आ जाते हैं एंड द पीपल ड्रिंक ओवर हेयर। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं रामलाल ENT आई हॉस्पिटल में जो मजीठा रोड पर स्थित है। सरकार यहां पर लेवल 2 के मरीजों के लिए 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने जा रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल यहां पर जो है कई तरह की खामियां हैं। रात को यहां पर 2 सिलेंडर पड़े हुए थे ऑक्सीजन के। चोर आते हैं और 2 रेगुलेटर उनके उतार कर ले जाते हैं। ये तो गनीमत थी कि रात को किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि किसी मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती तो उसकी मौत हो जाती। जो ऐसियाँ चोरी करते हैं, एक तरफ तो कोरोना काल में आपको पता है कि ऑक्सीजन की देश भर में कमी चल रही है, यहाँ पर भी कई अस्पतालों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहाँ पर मरीजों को नहीं लिया जा रहा। लेकिन जो चोर ऐसे जिसने ये अंजाम दिया है उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर भी हैं जिनका ये कहना है कि इस अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। पहले कई डॉक्टरों की जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं उनकी भी चोरियाँ हो चुकी हैं। हमारे साथ हैं ENT विभाग के मुखी प्रोफेसर मनजीत सिंह। इनसे बात करते हैं कि सारा क्या मामला है। सर थोड़ा ये दसना भी क्या रात को की होया सी, सारा क्या माजरा सी? ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰਾਤ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਵਿਫਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ KD ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ DMS ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ WhatsApp ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੜਕੀਆਂ 1 ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 18 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ 1500 ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 3500 ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੱਛੀ ਮੀਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ DRME ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ 12 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਕੈਮਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ 4 OPD ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 OT ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਹੀ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 OT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ ਤੋਂ ਲਗਵਾਇਆ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 100 ਬੈੱਡਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਣ? Safety and security is the utmost important for any institution. Safety and security वास्ते security guards are not, I think they are in less number in our institution. ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਰੰਤ 2 ਵਜੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਲਗਵਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਰਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? डिमांड तो सर सिक्योरिटी होनी चाहिए है प्रॉपर। अच्छा ये देखिए ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो पीजी करने के लिए आते हैं। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर रमन। अच्छा डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर किन चीज़ों की कमियाँ हैं? एक तो सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये एरिया बहुत सुनसान है लाइक, है ना, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब एटलीस्ट 2 या 3 पीपल वी नीड, है ना, फॉर आवर सिक्योरिटी। ऊपर से यहाँ बहुत सारे अननोन लोग आते हैं, जैसे ऑलरेडी सर ने बताया कि वो बाहर से सूप वगैरह पीने के बहाने फिर अंदर आ जाते हैं एंड द पीपल ड्रिंक ओवर हेयर एंड दे क्रिएट सो मच डिस्टर्बेंस फॉर अस। ये तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है, आप लड़कियां हैं यहाँ पर तो कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ जी, ऊपर से जो हमारा ड्यूटी रूम है उसकी पिछली दीवार भी लाइक इट कैन बी मतलब कभी भी टूट सकती है वो। तो आपने कभी हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया नहीं? हमने बताया पर ऑलरेडी सर ने एक गार्ड तो लगवाया, पहले तो वो एक गार्ड भी नहीं था। तो क्या यहाँ पर कभी चोरियाँ भी होती हैं? चोरियाँ, हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरे नाम डॉक्टर लोलिया। अच्छा डॉक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें का सामने? देखिए रात को 2 रेगुलेटर चले गए हैं, यहाँ सिलेंडर से चोरी करके ले गया है। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करती हैं? आप तो दिन रात आपको जो है जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको रहना पड़ता है यहाँ पर। यार एक तो है कि सिक्योरिटी, जैसे मेरी डॉक्टर को पीजी ने बोला है और सर ने भी किया कि कभी कभी ऐसे होता है वायलेंस पेशेंट भी आते हैं एंड देन एक गार्ड से वी कैन हैंडल इट, वही प्रॉब्लम है। और एक तो रात को कभी कभी ड्रंकर्ड आ जाते हैं एंड देन समटाइम्स दे नॉक ऑन आवर डोर, तो वही वी फील सो इनसिक्योर कि कभी कभी ऐसे सिस्टर जी लोग भी सिर्फ हम लोग सिर्फ लड़की लोग ही इधर पर है, तो ऐसे वी कुन एंटरटेन पेशेंट समटाइम्स बिकॉज वी आर स्केयर्ड कि नो वन विल हेल्प अस। तो चोरी भी कभी आपका कुछ सामान चोरी भी हुआ है? मेरी सामान भी चोरी हुआ था। मैं जब यहाँ पर नई आई थी ऑन डे 2, मेरी डे 2 में 2500 चोरी हो गई थी। तो उस दिन के समय तो बाद में मिला नहीं मिला। अच्छा डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर पल्लवी। तो डॉक्टर साहब आपको भी एक सिक्योरिटी इशू है और क्या क्या आपको लगता है क्या इसमें सुधार होना चाहिए? एक्चुअली लाइट का भी इशू है, तो कई बार ऐसे कोई इन्वर्टर और जनरेटर का कोई यहाँ पे है नहीं, तो जब लाइट चले जाती है रात को तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है रात को पेशेंट अटेंड करने में। और जैसे डॉक्टर लोलिया ने बताया कि उनके 2500 चोरी हुए थे, तो एक बार किसी का लैपटॉप और फ़ोन भी चोरी हुआ है पहले। अक्सर चोरियाँ होती रहती हैं। हाँ तो आप खुद को कितना इनसिक्योर फील करते हो आप? हमने एक्चुअली सर को जब भी हमें थोड़ा लगता है कि इशू है तो हम सर को बताते हैं और सर उसके लिए सर ने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। हाँ जी डॉक्टर आपका क्या नाम है? डॉक्टर राबिया। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है यहाँ पर आप खुद को कितना इनसिक्योर फील करती हैं यहाँ? एक्चुअली जैसे रात को हमारे कई बार ड्रंक पेशेंट्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स हैं, एमएलसी वाले पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स कईयों के साथ बहुत सारे अटेंडेंट्स आते हैं,
तो लाइक अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है तो एक अकेला मतलब हम फीमेल डॉक्टर जो है वो उन्हें हैंडल कर रही हैं, तो वो कई बार बहुत वायलेंट पेशेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रात को काफ़ी लेट ड्रंक पेशेंट मतलब लोग आ रहे हैं, वो हमारा डोर नॉक कर रहे हैं, फिर हम सिस्टर को कांटेक्ट करते हैं, मतलब रात को कई बार कोई हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं होता। आपको कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है? जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप 17 लड़कियां हैं यहाँ पर जो पीजी कर रही हैं। इनसिक्योरिटीज़ तो मतलब होती है फील, बट फिर वही हम अपने जजेस आगे अपने एचओडीज़ को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे कैमरास लगे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड लगा है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुई है। ये देखिए, ये तमाम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी यहाँ पर हैं, इनका कहना है कि इनसिक्योरिटी इन्हें हमेशा ही यहाँ पर रहती है क्योंकि ये बहुत सुनसान सा एरिया है। केवल एक सिक्योरिटी गार्ड इनके पास है। रात को 2 सिलेंडरों से रेगुलेटर चोरी हो जाता है। सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं, ये भी इनकी डॉक्टर मनजीत सिंह के प्रयासों से ही यहाँ पर लगे। अब ये कल पता चलेगा कि चोर आखिर कहाँ से आया था और कहाँ गया। हमारी मेडिकल प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। ये बच्चियाँ दूर दराज से देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई हैं, ये भावी डॉक्टर हैं देश की, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। यदि यही सुरक्षित नहीं होगी तो फिर यहाँ पर कौन सुरक्षित रहेगा? एक तरफ तो सरकार इस अस्पताल को कोविड लेवल 2 का जो मरीजों के दाखिल करने के लिए 100 मरीजों के दाखिल करने के लिए अस्पताल बनाने की बात कर रही है, वहीं इसकी सुरक्षा का कोई इंतजामात नहीं है। हमारी ये दरख्वास्त है कि इसे इतना बड़ा अस्पताल बनाने से पहले 100 मरीजों को दाखिल करने से पहले इसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।